Hello everyone, welcome to Exam Dos my dear students. So I'm back again with one very important video for all of you. तो बेटा आप लोग अक्सर एक चीज पूछते हो, यू गाइस कीप ऑन आस्किंग वन थिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम मी, कैन यू क्रैक गेट विद द गेट वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब? क्या यूट्यूब की मदद से गेट निकाला जा सकता है? तो इन द सिंपलेस्ट टर्म इफ आई से द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स यू कैन क्रैक गेट, you can get a top rank from YouTube as well. Many of my students have already obtained top rank from YouTube videos. So if you can get a rank from YouTube videos, why to even go for the paid courses? What is the use of the paid courses? That should also be the question. तो बेटा देखो, YouTube से वो बच्चे रैंक निकाल सकते हैं who are very dedicated, who are very committed, है ना? Those students who are very committed, who do not need any live interaction, who are very persistent, they can definitely get a rank from YouTube. The reason being, beta, in case of YouTube, you do not have any student to student interaction. In case of YouTube, you do not have any student to educator interaction. You are just sitting alone in your room watching videos. So being consistent, like daily watching the video on the same time, okay, and completing the syllabus, this becomes a very big challenge because you start to feel alone. आपको अकेलापन महसूस होने लगता है, आपको एंजाइटी हो सकता है आप थोड़ा सा डाउन फील करने लगो, डिप्रेस फील करने लगो. इस वजह से काफी मुश्किल हो जाता है कि एक अकेले कमरे में बैठ के बिना किसी से बातचीत किए आप अकेले लगातार वीडियो देखते जा रहे हो और रैंक निकाल ले रहे हो. ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, नो डाउट इट इज पॉसिबल, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर मेंटल स्ट्रेंथ. आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, मतलब एक विल पावर चाहिए कि अगर मैंने डिसाइड किया है तो मुझको रैंक निकालना ही निकालना है. इफ आई हैव डिसाइडेड, आई हैव टू एनी हाउ गेट द रैंक इन द गेट एग्जाम. आई एनी हाउ कवर द एंटायर सिलेबस दैट इज अवेलेबल. सेकेंडली बेटा, फिर आप कोई लाइव इंटरेक्शन नहीं कर रहे तो आप कोई डाउट भी नहीं पूछ पा रहे. If you are unable to understand anything, either you will have to go to the standard books, either you will have to watch more videos, but there is nobody to answer your query. And that is why what I have seen is many students that are getting good ranks from my YouTube videos, most of them belong to very good colleges as well, because there they have good professors whom they can reach out and they can ask their queries. कि अगर मान लो मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही तो यार कॉलेज में बैठा प्रोफेसर मुझसे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, वो वहां जाकर के पूछ लेते हैं. तो दे हैव एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट, है ना? या फिर वो बच्चे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, है ना, इफ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, देन दे विल वॉच माय यूट्यूब वीडियो एंड दे विल बी एबल टू ग्रास्प दैट टॉपिक. दोस केसेस आर आल्सो देयर. तो अलग अलग तरह के केसेस होते हैं, बट आप ऐसा नहीं है कि रैंक नहीं निकाल सकते यूट्यूब से, बट किसी की भी जर्नी को देख के पहले आपको अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना है, वेदर योर सिचुएशन इज एग्जैक्टली सेम एज दैट पर्सन और नॉट, है ना? इफ यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, सपोज यू आर अ ड्रॉपर, you have already good concept, you just need brief introduction to some topics, or you just need to watch some of the videos, or you are already enrolled in some coaching institute, or you are studying in a good college, that is you have some sort of another thing going along with the YouTube videos. कुछ ना कुछ आपका साइड में चल रहा है, या तो आप किसी कोचिंग में हो, या आपको प्रायर नॉलेज है, या फिर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, तो then it becomes easier to follow the YouTube videos as compared to the other students. Secondly, बेटा, अगर आपका कोई ग्रुप भी है, if you are preparing in a group, you have certain friends that are also preparing alongside you, then you can interact with them on a daily basis so that you do not feel alone, you do not feel anxious, and you can also strategize with them, like what all they have covered, what you need to cover, where is your preparation, where is their preparation. So those sort of interaction can go on, and that can help you stay motivated in your journey towards the GATE examination. So from content point of view, if I talk about beta, whichever videos I have recorded at whatever point of time, so that was my best content at that point of time. मैं ऐसा नहीं कहूंगा मैंने कहीं कंजूसी की है कि भाई ये तो YouTube वालों के लिए बना रहा हूं तो मेरे को जितना आता है उतना नहीं बताऊंगा, इनको थोड़ा बताऊंगा, ठीक है, पेड में ज्यादा बताऊंगा, ऐसा नहीं है. उस समय पे जो मेरी नॉलेज थी, जो मेरी कैपेबिलिटी थी, जो उस टॉपिक में मुझे बेस्ट पता था, उतना मैंने बताया. बट आर द टुडेज कोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम माय यूट्यूब कोर्सेज? डेफिनेटली, बिकॉज बेटा जस्ट लाइक योर नॉलेज ग्रोज, माय नॉलेज ऑल्सो ग्रोज ईयर ऑन ईयर. तो अगर कोई प्लेलिस्ट में 5 साल पहले बना रहा हूं और वही सब्जेक्ट में आज पढ़ा रहा हूं,
कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा, कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा होगा, कुछ में कम होगा, बट इंप्रूवमेंट तो डेफिनेटली होगा। तो डज दैट मीन दोज प्लेलिस्ट आर नॉट सफिशिएंट टू क्रैक द एग्जाम? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस सेम है, तो उस समय पे जो नॉलेज दी गई थी उससे भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। बट क्या होता है, कुछ चीजों को समझने में दिक्कत आती है, तो जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस ग्रो करता है, मेरा उनको एक्सप्लेन करने का तरीका बदल जाता है, या उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई और चीज डाल दूंगा, या गेट में कोई और नई तरह का क्वेश्चन आ गया, वो कॉन्सेप्ट मैं उस सब्जेक्ट के अंदर जोड़ दूंगा। तो बेसिकली बहुत हद तक कुछ कॉन्सेप्ट ऐड हो जाते हैं, कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने का तरीका बदल जाता है, या कुछ एग्जाम्पल्स ऐड हो जाते हैं। इस तरीके के मॉडिफिकेशन कोर्स में होते रहते हैं। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से यस, दोज वीडियोस आर सफिशिएंट, बट एज लॉन्ग एज आई कीप गेनिंग एक्सपीरियंस, आई कीप लर्निंग ईयर ऑन ईयर, डेफिनेटली माई कंटेंट विल कीप ऑन इंप्रूविंग। तो अगर आज की डेट में बात करें तो कंटेंट जो पहले था उससे इंप्रूव्ड ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जिन लोगों के पास एकदम ही कोई रिसोर्स नहीं है, उनको बेटा ना मिलने से कंटेंट, ये तो अच्छा है ना कि गेट का फुल सिलेबस यूट्यूब पे मिल जा रहा है। आप ऐसा सोचिए, आप उसको कंपेयर मत कीजिए कि पेड में क्या मिल रहा है और यूट्यूब पे क्या मिल रहा है। आप ये सोचिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको मिल रहा है, वो सबसे बड़ी बात। और वो भी कोई ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स मिल रहा है या फिर निपटा दिया गया है कोई सब्जेक्ट, होलिस्टिक वे में, कंप्लीट फुल फ्लेजेड वे में आपको सब्जेक्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपको सब्जेक्ट बेसिक से ही सीखने का मौका मिल रहा है। अब यार देखो, अगर आज कोई पेड कोर्स ले रहा है, वो कहे सर 3 साल बाद तो आप इससे बेहतर पढ़ा रहे हो, ऑब्वियसली, तो आज का जो पेड कोर्स है, इससे 2 साल बाद 3 साल बाद सेम पेड कोर्स में इससे बेहतर ही कंटेंट मेरा जाएगा। तो वो तो होना ही है ना, क्योंकि मुझे भी इंप्रूव करना है, मुझे भी चीजें सीखनी है। आप लोगों के डाउट से, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके आई ऑल्सो लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। So my content will also keep on improving. It's not about the free course. Even paid courses will keep on improving year on year. So if you buy my paid course next year, it will be better than this year. This year's course will be better than the last year. So that way, year on year, there are improvements in the course. Like this year, I completely revamped my signals and systems course. है ना? Earlier it was around 90 hours. This year it went around 120 hours. Now I am revamping my analog electronics course. And I'm also revamping my engineering mathematics course. So I'll keep on evolving. I'll keep on improving my courses year on year. My content will keep on getting better, as well as my content will keep on getting more student friendly. That is easier to understand, easier to grasp, easier to remember. Those are my objectives year on year in terms of the improvement. तो अगर मैं बात करूं, रैंक लाई जा सकती है, यस लाई जा सकती है, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो रैंक लेकर के आए हैं, तो आपके सामने बहुत से प्रूफ्स हैं। बट क्या आप रैंक ला पाओगे उस कोर्स से? सवाल ये है, वो डिसीजन आपको लेना है बेटा, कि अगर आपके पास देखिए कोई भी रिसोर्स नहीं है, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफी। तो अगर आपके पास कोई भी सहारा नहीं है, तो ये तिनका नहीं है यूट्यूब का कोर्स, ये पूरा प्लैंक है, जिसपे टाइटैनिक में हीरोइन सर्वाइव कर गई थी, उस लेवल का प्लैंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो जस्ट अपने दोस्तों में शेखी मारने के लिए, अपना रेप्यूटेशन बनाने के लिए मत सोचो कि यूट्यूब से रैंक निकालना है। आप अपने आप को बेस्ट चांस दीजिए, क्योंकि आपके जो लाइफ के, आपके करियर के ईयर्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कोई 8,000, 10,000, 20,000 रुपए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके करियर का जो टाइम है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको बेस्ट कोर्स के लिए जाना चाहिए, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली आप यूट्यूब से भी क्रैक कर सकते हो। बस विल पावर लगेगा, मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगेगी, बट यस यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट। तो ये मत कहिएगा कि सर 20,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। मैं बिल्कुल मानता हूं बहुत ही बड़ी बात होती है। 10,000 रुपए, 2,000 रुपए भी बड़ी बात होती है। वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अब कोई आदमी करोड़ों रुपया कमा रहा है तो उसके लिए 10,000 कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आदमी 50,000 रुपए कमा रहा है तो ऑब्वियसली 20,000 रुपए बहुत बड़ी बात है, और कोई 10,000 रुपए ही कमा रहा है तो उसके लिए 2,000 रुपए भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा मतलब इस चीज पे डिबेट मत करने लग जाना कमेंट सेक्शन में, क्या बड़ी चीज है और क्या छोटी चीज है। वो नजरिए की बात है, फाइनेंशियल स्टेटस की बात है। तो मेरा ये कहना है, जो बच्चा जिस लेवल पे, या जिसकी फैमिली इनकम जिस लेवल पे हो, जिसकी अफोर्डेबिलिटी जिस लेवल पे हो, उस पे जो बेस्ट हो सकता है वो करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बच्चा 20,000 का कोर्स खरीदे या 50,000 का कोर्स खरीदे या दिल्ली जाके ऑफलाइन कोचिंग करे 1 लाख की, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। ठीक है, किसी के लिए कोई चीज आसान है तो किसी के लिए वही चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है अफोर्ड कर पाना। लेकिन आप अपनी सिचुएशन में देखो कि आपकी सिचुएशन में बेस्ट क्या हो सकता है। तो वॉट एवर इज बेस्ट फॉर यू, गिवन योर सर्कमस्टांसेस, यू टेक दैट डिसीजन
and that is all beta. So YouTube courses are there. Yes, they are sufficient to crack exam. I have given whatever I could have given at that point of time, and right now if you talk about my today's paid courses, yes, they are much better than the YouTube courses because over the years I have also evolved. जो मैंने मशीन की प्लेलिस्ट बनाई थी वो 5 साल पहले बनाई थी, अब 5 साल में कुछ तो इंप्रूवमेंट आएगा ना कंटेंट में। मेरी भी सब्जेक्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मेरी स्टूडेंट को लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मेरा कंटेंट इंप्रूव होगा, मेरा टीचिंग मेथड इंप्रूव होगा, सारी चीजें होंगी। तो ऑब्वियसली थिंग्स विल गेट बेटर एंड बेटर विद टाइम, ओके। बट yes, those playlists are still very relevant and they are sufficient to crack the examination. तो अगर आपके पास देखिए अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आप उस फाइनेंशियल कंडीशन में अभी नहीं है कि आप अफोर्ड कर पाए, तो मैं मानता हूं यार आपके पास जो है ना दिल बहुत बड़ा होना चाहिए कि पैसा हो ना हो, इंसान के पास जिगर बड़ा होना चाहिए, इंसान के पास एक स्ट्रगल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि यार मैं स्ट्रगल करूंगा, जो कुछ हो पाएगा मैं डेफिनेटली करूंगा, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए और फिर वो फाइट करे। और YouTube वीडियोस के साथ अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो आप हमारी प्रैक्टिस बुक्स परचेज कर सकते हो, जिससे कि थ्योरी आपकी YouTube से कवर हो जाएगी, प्रैक्टिस आप हमारी प्रयास बुक से कर सकते हो जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और एक टेस्ट सीरीज ले लो, तैयारी तो वहां से भी हो सकती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या सूट करता है उसके हिसाब से आप अपना कोर्स डिसाइड कर सकते हो। और वैसे तो देखो अगर अभी अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है आपको, तो हमने पेड कोर्सेज पे भी बहुत बेहतरीन डिस्काउंट दे रखा है जो कि आज एक्सपायर हो जाएगा, इसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होने वाला ऑफर। 50% ऑफ है लाइव कोर्सेज पे, 40% है रिकॉर्डेड कोर्सेज पे, कोड ये लिखा हुआ है। तो आपके ऊपर है, एक बार आप ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेज ब्राउज कीजिए, आपको कोई कोर्स पसंद आता है तो आप ये कोड लगा के परचेज कीजिए। और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कत है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, जो भी मदद हम आपकी कर पाएंगे in terms of the pricing, in terms of the discount, we will definitely help you out, okay? तो ये मेरा सभी स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है। थैंक यू।